دھرنا اور مارچ سیاسی سرگرمی ہے، فوج کا کچھ لینا دینا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے وہ جو کہتے ہیں ادارے کی طرف سے کہتے ہیں، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ غیر جانبدار ادارہ ہے، منتخب حکومت کے احکامات پر عمل کرتی ہے، الیکشن پر بھی حکومت کے بلانے پر آتی ہے، ایسا نظام بنا لیں کہ الیکشن میں فوج کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو اس آزادی مارچ کو ہم سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کر دیں۔ خدا نہ کرے اگر اگلا بجٹ بھی ان اہلوں کے حوالے ہو گیا تو پاکستان مکمل طور پر بیٹھ جائے گا۔ فضل الرحمان نے آزادی مارچ کم از کم مزید 4 دن جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ شرکا سے خطاب میں کہا 12 ربیع الاول کو آزادی مارچ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں تبدیل کر دیں گے۔ مزید بولے یک طرفہ احتساب نہیں چلے گا، وہ ملک بچانے آئے ہیں۔ اگلا بجٹ بھی موجودہ حکمرانوں نے پیش کیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، انہیں مزید مہلت نہیں دیں گے۔ جلسے سے احسن اقبال، نیر بخاری، محمود اچکزئی کا بھی خطاب۔ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا کیسے ہے ختم کرنا؟ حکومت کی اپوزیشن سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں۔ پرویز الہی کی 36 گھنٹوں میں مولانا سے تیسری ملاقات، کہتے ہیں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، صبر اور محنت کی ضرورت ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، درمیانی راستے کے لیے رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پرویز الہی مولانا سے پھر رابطہ کریں گے۔ اسلام آباد میں آزادی مارچ کا میدان، موسم نے لیا شرکا کا کڑا امتحان۔ تیز بارش کے باعث لوگ مساجد اور کنٹینرز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، آندھی نے خیمے بھی اڑا دیے۔ وزیر اعظم نے انتظامیہ کو شرکا کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی، جے یو آئی نے پیشکش مسترد کر دی۔ غفور حیدری نے کہا وزیر اعظم تعاون اپنے پاس رکھیں، انہوں نے اپنا انتظام کر رکھا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ورلڈ ٹریول مارکیٹ کی 3 روزہ نمائش لندن میں اختتام پذیر۔ ایکسل ایرینا میں ہونے والی نمائش میں پاکستان سمیت 200 سے زائد ممالک نے اپنی ثقافت کے رنگ پیش کیے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر سیاحت عاطف خان کی خصوصی شرکت۔ نئی ویزا پالیسی سے پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں سیاحوں کے لیے ٹورزم پولیس قائم کی جائے گی۔ صوبائی وزیر سیاحت عاطف خان کی لندن میں پریس بریفنگ۔ برٹش پاکستانیوں کے لیے جلد ہی میگا ایونٹ کرانے کا اعلان۔ برمنگھم میں آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری مسعود خالد کی کارنر میٹنگ، کشمیری کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ میرپور آزاد کشمیر کے زلزلہ متاثرین کی معاونت سے متعلق گفتگو، اوورسیز کشمیریوں نے مسائل سے آگاہ کیا۔ وسطی لندن کے ہوٹل میں پروقار تقریب، پروجیکٹ کے نمایاں فیچرز پر تفصیلی بریفنگ، اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کے لیے گہری دلچسپی۔ لیڈز میں پولیس اور نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں، متعدد افراد زخمی۔ شیلنگ اور پتھراؤ سے ہیر ہلز روڈ پر ٹریفک درہم برہم، پولیس نے 15 نوجوانوں کو فساد کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یورپی پارلیمنٹ برسلز میں کشمیر کونسل یورپی یونین کے زیر اہتمام سیمینار، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی خصوصی شرکت۔ بھارت سے فوری طور پر مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ۔
जद्दा में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज की OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ से मुलाकात। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, डॉक्टर यूसुफ का इजहार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, क्या मौलाना जा रहे हैं? क्या मौलाना अपने नंबर 1 मुतालबे यानी वजीर आज़म के इस्तीफे से पीछे हट गए हैं? क्या धरने का धड़न तख्ता हो गया? मौलाना को बड़े गारंटर की तलाश क्यों है? मौलाना बरहम से नरम कैसे हो गए? प्राइम टाइम बुलेटिन में शामिल हैं इन सब सवालात के जवाबात, मगर पहले जिक्र उन इल्जामात का जो यकसर मुस्तरद कर दिए गए। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आजादी मार्च में JUI कायदीन के इल्जाम तराशियों का जवाब दे दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं धरना और मार्च सियासी सरगर्मी है। सियासी सरगर्मियों से पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं। फौज गैर जानिबदार इदारा है। उन्होंने वाजे किया कि 2014 के धरने में भी फौज ने हुकूमत वक्त का साथ दिया था। इलेक्शन में फौज का कोई किरदार नहीं। हुकूमत फौज को इलेक्शन के लिए ना बुलाए तो फौज नहीं आएगी। ये जो धरना है, ये जो मार्च है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं। इसमें किसी भी तौर पे फौज का बहैसियत अदारा कोई ताल्लुक ना है ना होता है। और सियासत के अंदर इस किस्म के बयानात जो हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि इस किस्म के बयानात आ रहे थे, जिस पे मैंने जितना कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था वो दिया भी, क्योंकि फौज इस वक्त एक ऐसा अदारा है जो कि ना सिर्फ पिछले 20 साल से, मैंने पिछली दफ़ा भी जब बात की थी, हम जिन कामों में मसरूफ़ हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं, मुल्क की दफा के हैं, वो हमें इस वक्त फुर्सत नहीं देते कि हम इस किस्म की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, इन इल्ज़ाम तराशियों का भी जवाब दें। तो इसमें तो ये तो एक जमहूरी एक्टिविटी है, इसको जैसे हुकूमत और अपोजिशन पार्टी लेके आगे चलती हैं, ये उनका डोमेन है और उनके ही करने के काम है। तो इस किस्म की एक्टिविटी में फौज बहैसियत अदारा किसी भी सूरत किसी भी साइड पे इन्वॉल्व नहीं है। फजलुर रहमान साहब बहुत मुंजब सियासतदान है और उनको भी पाकिस्तान उतना ही अजीज है जितना कि हम सबको है। इसकी इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या हैं, ये फजलुर रहमान साहब को खुद भी इसका अंदाज़ा है, हो सकता है। तो आई विल लीव इट हियर कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे या जो दूसरे इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, अब काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। आई लीव इट टू यू अगेन कि उस वक्त भी जो 2014 का धरना था, उस वक्त भी फौज ने हुकूमत वक्त का साथ दिया था और एक इंस्टीट्यूशन होने की हैसियत से सिक्योरिटी के लिए या जो हमारे ज़रूरी इमारतें होती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो भी हुकूमत ने टास्क दिया था वो फौज ने उस वक्त भी पूरा किया था। फौज जो है वो हुकूमत के ऑर्डर्स के ऊपर अमल करती। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च कम अज़ कम मज़ीद 4 दिन जारी रखने का इंदिया दे दिया है। शुरका से खिताब में कहा 12 रबीउल अव्वल को आज़ादी मार्च को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर देंगे। मजीद अगला बजट भी मौजूदा हुक्मरानों ने पेश किया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, इन्हें मजीद मोहलत नहीं देंगे। 12 रबीउल अव्वल को इस आज़ादी मार्च को हम सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर देंगे। खुदा न करे अगर अगला बजट भी इन अहलों के हवाले हो गया तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। एक साल में 3 बजट पेश किए और 3 बजट पेश करके भी ये महसूलात का हदफ हासिल नहीं कर सके और सालाना बजट ने आज पाकिस्तान को दिवालियापन के दहाने खड़ा कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान रात गए, चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर क्यों गए? 92 न्यूज़ अंदर की खबर ले आया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसी बड़ी यकीन दहानी और गारंटी के मुंतज़िर हैं। मौलाना को हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में 1 या 2 मेंबरान के अलावा किसी पर एतमाद नहीं। हुकूमती कमेटी की पेशकश भी मौलाना को मुतमईन न कर सकी। आज हम चौधरी साहब से हलवा खाने के लिए आए हैं। मखंडी हलवा, अल्लाह करे बेहतर हलवा बनाया हो, ठीक, शुगर फ्री।
आजादी मार्च का इख्तिताम कैसे, क्यों और किन शराइत पर किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान मुश्किल में पड़ गए। जराये के मुताबिक JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आजादी मार्च को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी बड़ी यकीन दहानी और गारंटी के मुंतजिर हैं। मौलाना को हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में 1 या 2 मेंबरान के अलावा किसी पर एतमाद नहीं। हुकूमती कमेटी की पेशकश भी मौलाना को मुतमईन न कर सकी। तूल पकड़ता धरना, अखराजात, बदलते मौसम की सख्ती, कारकुनों की खुले आसमान तले मौजूदगी ने मौलाना को परेशान कर दिया। रात गए चौधरी बिरादरान से मुलाकात की बुनियादी वजह शुगर फ्री हलवा नहीं बल्कि कारकुनों को मजीद इम्तिहान से निकालने का हल ढूंढना था। चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम इमरान खान से होने वाली मुलाकात और पेशरफ्त से आगाह किया। जराये के मुताबिक मौलाना ने चौधरी परवेज इलाही से सवाल किया कि कैसे यकीन कर लूं कि हुकूमत वादे की पासदारी करेगी। मौलाना ने पेशकश की कि अगर सालिस बड़े गारंटियर बनते हैं तो इस सूरत में लचक दिखा सकते हैं। हमारे मुतालबात को संजीदा लिया जाए, मजीद कशीदगी नहीं चाहते, अलबत्ता उसका इन्हिसार हुकूमती रवैये पर होगा। जराये के मुताबिक चौधरी बिरादरान ने मामला अफहाम व तफहीम से हल करने पर जोर दिया। चौधरी बिरादरान ने कहा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए फरीकैन को कायल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जराये के मुताबिक सर्द मौसम और हुकूमती मौक़िफ़ में लचक न होना ही मौलाना की वाहिद परेशानी नहीं बल्कि अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी धरने को मजीद तूल देने की हिमायत नहीं कर रही। इसके बरक्स मौलाना राहबर कमेटी को एंगेज रख कर हुकूमत पर दबाव बढ़ाकर अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। आज़ादी मार्च को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुलाकातों और इजलासों का सिलसिला जारी है। हुकूमती नुमाइंदों ने अपोजिशन से राबते तेज कर दिए हैं। चौधरी परवेज इलाही ने 36 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से तीसरी मुलाकात कर ली। आज रात चौथी मुलाकात भी होने जा रही है। अब तक होने वाली मुलाकातों का नतीजा क्या रहा, आइए आपको बताते हैं। अभी भी वही पोजीशन है, इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो हमारा मौक़िफ़ है जिस पर हम शिद्दत के साथ कायम हैं। अब फैसला हमने करना है। आज़ादी मार्च का खात्मा कैसे होगा, मौलाना फजलुर रहमान को कैसे बनाया जाए, हुकूमती अरकान ने अपोजिशन से राबते तेज कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान हायल डेडलॉक खत्म कराने के लिए चौधरी बिरादरान सरगर्म है। गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बिरादरान से मिलने उनके घर गए और शुगर फ्री हलवा खाने का भी बताया। आज हम चौधरी साहब से हलवा खाने के लिए आए हैं। मखंडी हलवा करे बेहतर हलवा बनाया वो शुगर फ्री। चौधरी परवेज इलाही ने भी 36 घंटों के दौरान तीसरी बार मौलाना फजलुर रहमान से मिल लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। हम सब नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और कई चीज़ें चल रही हैं साथ साथ और दुआ करें इंशाल्लाह बेहतर होगा। सर कोई ब्रेक थ्रू है? लेकिन इसके लिए थोड़ा सब्र और मेहनत की जरूरत है, वो हो रही है। सर दोनों तरफ से आपको लगता है कि कोई मस्बत रद्द-ए-अमल आ रहा है? देखिए इसीलिए मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है ताकि इसको मुस्बत और सही तरीके से इसको वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं मौलाना समझदार हैं, बंद गली में नहीं जाएंगे। उम्मीद है मुफाहमत का रास्ता बंद नहीं करेंगे। मौलाना साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो गुज़िश्ता उनकी रविश है वो हमेशा कुछ न कुछ ऑप्शन जो है वो रखता है, रास्ते खुले रखता है, बंद गली की तरफ नहीं जाता। मुफाहमत की सियासत पर उनका यकीन है। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। स्पीकर हाउस में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि चौधरी बिरादरान धरना खत्म कराने के लिए मौलाना को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि JUI ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन, एक तरफ राब्ते हैं तो दूसरी तरफ इल्जामात की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है। सेनेट का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। अपोजिशन तो अपोजिशन, हुकूमती बेंच भी सूरत हाल खराब करने में पेश रहे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना बख्श चांडियो, फैसल जावेद और मुराद सईद के दरमियान लफ्जी बमबारी आप भी देखिए।
हिम्मत होती चेयरमैन साहब 5 मिनट के लिए सुन लेते कि आपके कायद के पास 15 साल तक कश्मीर कमेटी थी, सरकारी मराहत लेने हैं, सरकारी प्रोटोकॉल लेने हैं, सरकारी खर्चों के ऊपर जिंदगी बसर करनी है। ये तमाम अपोजिशन वाले एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात लगाते रहे कि तुमने करप्शन की। विकीलीक्स में आया कि मुझे खिदमत का मौका तो फजलुर रहमान ने कहा मैं जरदारी और नवाज शरीफ और बेनजीर से आपकी अच्छी खिदमत करूंगा। तब यहाँ पे तो नारे लगाते हैं कि गो अमेरिका गो से उसका मतलब था चलो अमेरिका चलो, चलो अमेरिका चलो। कि उन्होंने यहाँ जो धरना दिया और यहाँ जो ढोल और बाजे और कौम की गैरत को ललकारा, मेरे इस एहतजाज और आजादी मार्च को आज 11वां दिन है, एक गमला भी नहीं टूटा। लेकिन आपने यहाँ लाठी बरदार देखे जिन्होंने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया, तशरीफ रखें, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फैलाया और इमरान ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया। ये जो सारे केसेस हैं ये इमरान खान ने तो नहीं बनाए इन पे, या इमरान खान ने तो पकड़ के जेलों में बंद नहीं किया, अदालतों ने किया। और ये केसेस इनके दौरों के बने हुए केसेस हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इस्तीफा नहीं मिलेगा, NRO नहीं मिलेगा। वो कहते हैं द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पोंडिंग, प्लीज कॉल आफ्टर 4 years। आज ये लाखों लोग जो बाहर रोड पे बैठे, मैं मानता हूँ इन्होंने उनके लिए बड़े हलवे वलवे बनाए होंगे, लेकिन इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार कौन है? इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार इस मुल्क का, बहरहाल मैं वजीर-ए-आज़म कहता हूँ, इस मुल्क का वजीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उसके वज़रा हैं। आज आप उनको मिन्नतें कर रहे हैं, मौलाना साहब को घसीट रहे हैं, खुद को नाक घसीट रहे हैं, रगड़ रहे हैं उनके सामने। कल तक आप उनको हाथ देने को तैयार नहीं थे। ये भी कोई मुल्क का लीडर होता है? बच्चों की तरह रूठता है, इधर से घूम के इधर आता है कि शहबाज शरीफ को हाथ देना पड़ेगा, बिलावल भुट्टो को हाथ देना पड़ेगा। या वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की 3 रोज़ा 40वीं सालाना नुमाइश लंदन के मारूफ एक्सेल एरिना में इख्तिताम पजीर हो गई। पाकिस्तान समेत 200 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने अपने अपने ममालिक की सकाफत पर तबादला ख्याल किया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। दिलकश वादियाँ हों, खूबसूरत पहाड़, रेगिस्तानों की सैर हो या फिर समुद्री मौज मस्तियाँ, दुनिया भर की सैर करने के लिए सजाया गया लंदन में 3 रोज़ा आलमी मेला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से लेकर एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका तक हर किसी ने अपने मुल्क की खूबसूरती के खूब गुन गाए। मुकाबला ऐसा कि हर किसी ने अपने कल्चर, सकाफत और तहजीब को दुनिया के सामने जदीद अंदाज में मुतारफ कराया। मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाएं अपनी रवायती लिबास और कल्चर को मुतारफ कराती नजर आईं। दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने इस नुमाइश में अपने अपने ममालिक की सियाहत को फ़रोग देने के लिए स्टॉल्स लगाए। दूसरी तरफ सैर व तफरीह के शौकीन लोग भी हज़ारों की तादाद में दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में शिरकत के लिए पहुँचे। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान का पवेलियन भी इस नुमाइश में मौजूद था, जिसका इफ्तिताही फीता बड़े चाव से हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई वज़ीर KPK आतिफ खान ने काटा, मगर पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट कारपोरेशन की मुनासिब सरपरस्ती न होने की वजह से पाकिस्तान अपने हसीन कुदरती मनाजर दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश करने से कासर रहा। होमवर्क काफ़ी नहीं हुआ, इसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ PTDC की रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आती, लेकिन सारे जिससे भी बात कर रही हूँ सारे प्राइवेट जो हैं टूर ऑपरेटर्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी है, KPK की नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है उसकी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है, जो कि इंतहा अफसोस की बात है। सूबाई वज़ीर सियाहत आतिफ खान ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में पाकिस्तानी पवेलियन भी कायम किया गया है। अनकरीब पाकिस्तान में टूरिज्म पुलिस भी कायम की जाएगी, जो सियाहों के साथ इंतहाई दोस्ताना अंदाज में डील करेगी। पहली हुकूमत है जिसने टूरिज्म को वाकई सीरियसली एक सेक्टर के तौर पे लिया है, जिसका हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे सर्वाइव करते हैं, टूरिज्म पे चलते हैं। हमारे मुल्क में भी अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा, चाहे वो समंदर है, दरिया है, पहाड़ है, ज़बरदस्त किस्म के कल्चर्स हैं, फूड हमारा बहुत यूनिक है, म्यूज़िक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक टूरिज्म के लिए होनी चाहिए मुल्कों में। पता है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस कहा जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो हेरिटेज है वो बहुत ही बड़े अंदाज में मौजूद है, बहुत बड़े कसीर सिग्निफिकेंट तरीके से मौजूद है, जिसमें आपके बुद्धिस्ट की हेरिटेज है, हिंदू हेरिटेज है, सिख हेरिटेज है, मुसलमानों की बेतहाशा जो है वहाँ पर वो हेरिटेज है। तो ये जो अभी करतारपुर के हवाले से आपको पता है कि हमने कॉरिडोर ओपन किया है,
से मौक़े हैं। हाल ही में हमारी जो वफाकी हुकूमत ने जो वीज़ा पॉलिसी और जो टूरिज़म पॉलिसी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में जी बहुत सारे टूरिस्ट काफ़ी माशाल्लाह लास्ट ईयर से काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, जिसमें तकरीबन 15 लाख जो है टूरिस्ट आए, जिनमें तकरीबन 19,000 फॉरेन टूरिस्ट थे। बलूचिस्तान हेरिटेज कल्चर और टूरिज़म के हवाले से बहुत रिच है। वहाँ पर हम कोस्टल टूरिज़म को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रिजॉर्ट्स पे काम हो रहा है। हेरिटेज आपको पता है, बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस इन हेरिटेज। मेहरगढ़ इज़ देयर, जो 7,000 साल पुरानी हेरिटेज साइट है। तो इसी पर बहुत सारा काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह पहले से सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज़म बेहतर हो जाए। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के हसीन और जमील इलाकों के बारे में लोग मालूमात लेते दिखाई दिए। इस मौके पर नुमाइश के शुरा ने पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। Fantastic day today, really busy, made loads of contacts, loads of business, had a great day today. We've had thousands of people turn up and it's been absolutely amazing. We had a lot of wonderful meetings and much more visitors than yesterday. पाकिस्तानी डियास्पोरा जो यहाँ रहती है वो भी अब स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान आना, स्पेशली नौजवान जो है। It's very nice to know the each country's culture and heritage and everything. I'm so happy to be here. Thank you so much. हर कोई स्टॉल पे आ रहा है, बलूचिस्तान के बारे में पूछ रहा है। They want to visit बलूचिस्तान और डिस्कवर करना चाहता है बलूचिस्तान कैसा है और कहाँ पे है। Everyone wants to visit it. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के हमारे स्टैंड पे काफ़ी रश है और पहले की निस्बत से आई थिंक, और उम्मीद है कि ये और भी बेहतर होगा। हमारे पास जितने भी विजिटर्स आए मोस्टली उन्होंने इंटरेस्ट शो की है कि वो नादरन एरियाज ऑफ पाकिस्तान जो है नादरन साइड को जो है ना वो विजिट करना चाह रहे हैं। We told them that we don't only have natural beauty in the north, we have a cultural heritage in the south. So if you travel from the south to north, you could see like thousands of different cultures. दुनिया के कई ममालिक ने अपनी एयरलाइंस और रवायती खाने भी इस मौके पर मुतारिफ कराए। टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए दुनिया की ये सबसे बड़ी नुमाइश लंदन के एक्सेल अरीना में हर साल मुनक़्क़िद होती है। पाकिस्तान का स्टॉल भी यहाँ पर तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा, ताहम इसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। वज़ीर सयाहत खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान कहते हैं सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में टूरिज़म जोन बना रहे हैं, मकामी कल्चर और माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे। लंदन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सियाहत आतिफ खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। लंदन में CPIC का चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िशान शाह के साथ प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में पाकिस्तान पवेलियन भी कायम किया जा चुका है। अनकरीब पाकिस्तान में टूरिज्म पुलिस बनाई जाएगी जो सियाहों के दोस्त की तरह काम करेगी। पाकिस्तान में अगर कोई सियाह जुर्म करेगा तो उसे भी टूरिज्म पुलिस डील करेगी। अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल हो या पॉलिटिकल आज़ादी है वो तो हर आदमी को है, हर पार्टी को है। हमने ना उन्हें रोका है ना हमने उन्हें कोई ऐसे पुलिस ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन ये कि थोड़ा सा टूरिज्म पे उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। एक सवाल के जवाब में आतिफ खान ने कहा कि धरना 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। धरनों से दुनिया में पाकिस्तान का अच्छा तासुर नहीं जाता। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में बेहतर माहौल देंगे। लोग उसको एज ए पॉलिटिकल चीज़ नहीं उसको समझते, वो समझते हैं कि कोई इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन जो वो लेते हैं वो इतना बेहतर इमेजेस नहीं जाते। अगर ना होता तो अच्छा होता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में ये मसला भी हल हो जाएगा। CPIC के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िशान शाह के इस मौके पर कहना था कि इस्लामाबाद में जल्द नया तामीराती मनसूबा शुरू करने का इरादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है और पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। इन्वेस्टमेंट जोन जो बना रहे हैं, टूरिज्म जोन जो बना रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं एंड इंशाल्लाह इसमें हम इनकी सपोर्ट करेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। हम तो करते रहते हैं अपने चेंजिंग परसेप्शंस के टूर व्लॉगर्स को पाकिस्तान ले जाके, और इंशाल्लाह इसके अंदर और भी करते रहेंगे। आतिफ खान साहब ने हमारी सपोर्ट भी की है एंड हालांकि मैं ये बात भी करूँगा कि ही इज़ ओनली वन ऑफ द वेरी फ्यू मिनिस्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान जिसने रिकग्नाइज हमारी की है एफर्ट्स को और हमें सपोर्ट किया है। वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद ने मीरपुर के बासियों की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इजलास में मीरपुर में ज़लज़ले की वजह से होने वाली तबाही और वहाँ मौजूद अफराद की मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जहाँ मसला कश्मीर पर मुख्तलिफ मुलाकातों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर मीरपुर में हालिया दिनों में होने वाले ज़लज़ले की वजह से मीरपुर के बासियों की मुश्किलात पर ब्रीफिंग भी दी। ज़लज़ला मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के पेश नज़र बर्मिंघम में मौजूद मीरपुर और हल्का डडियाल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और अपनी शिकायत और मसाइल को हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक पहुँचाया। वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर चौधरी मसूद खालिद ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि इनकी हुकूमत मकामी लोगों के साथ राब्ते में है और बिला तफरीक ज़लज़ला ज़दगान की मुश्किलात हल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर चौधरी मसूद खालिद, ज़हूर सरवर, कोऑर्डिनेटर वज़ीर ज़राअत चौधरी मोहम्मद शकील और दीगर अफराद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों और लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात पहुँचाने पर ओवरसीज़ कश्मीरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के शुक्रगुजार हैं। हमारे इलाके के मीरपुर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पर इंशाल्लाह काम जारी है और वो तकरीबन 6 माह साल के अंदर अंदर सारा इलाका जो है ये उसमें सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है ये हम मुकम्मल कर लेंगे। मसूद खालिद के दस्ते बाजू हैं, उनको दावत देकर जो इज़्ज़त दी, मैं इस पर इनका ममनून एहसान शुक्रगुजार हूँ। के हवाले से जिस तरीके से मसूद खालिद साहब ने पिछले 3 साल में तामीर और तरक्की के रिकॉर्ड काम करवाएं, ये काबिल तहसीन है और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बाकी भी जो मांदा काम बचे हैं डडियाल शहर के अंदर, बिलखुसूस डडियाल हाई स्कूल के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मसूद साहब से, जिस दिलचस्पी के साथ इन्होंने 3 साल में 9 डडियाल की तामीर और तरक्की की, मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। 2016 में हमें ये डडियाल मिला था, आज अल्लाह के फजल करम से उससे कई गुना बेहतर लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है और लोग आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र कर सकते हैं। डडियाल से लेकर शाख तक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने एक इंतहाई मुख्तर से अरसे में काम मुकम्मल किए हैं और आज लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। आखिर में ओवरसीज़ कश्मीरियों ने फैसला किया है कि वो ज़लज़ला मुतासरीन की माली सपोर्ट हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़रिए ही करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वस्ती लंदन के होटल में सूबा पंजाब के शहर जेहलू में सिटी हाउसिंग स्कीम के ओवरसीज ब्लॉक को बरतानिया में लॉन्च कर दिया गया। लॉन्चिंग तकरीब में लोगों ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई। ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। सूबा पंजाब के शहर जेहलम की सिटी हाउसिंग स्कीम लंदन में प्रमोशनल इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज कम्युनिटी ने भरपूर दिलचस्पी ली। सिटी हाउसिंग की इंतजामिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिटी हाउसिंग का ये मंसूबा न सिर्फ रिहायशी बल्कि कमर्शियल सार्फिन के लिए भी फायदेमंद है और इस मंसूबे में सरमायाकारी के जरिए मुस्तकबिल में माली फायद हासिल किए जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप हुआ प्रोजेक्ट है, उसमें ओवरसीज ब्लॉक ऐड हुआ है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज ओनली। इसमें सबसे जो हॉट न्यूज़ यानी वो ये है कि जो 4 मरला का कमर्शियल है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, फुली बुक होने वाला है, किसी वक्त भी फुल स्टॉप लग सकता है। होपफुली इट विल बी सक्सेसफुल इन है। हमारी कम से कम भी 20 लोगों की टीम यहाँ बैठी हुई है, फिर भी बाज़ हमारे डेस्क के ऊपर क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बड़ा रिस्पांस है। ये सिटी हाउसिंग का छठा प्रोजेक्ट है। सिटी हाउसिंग इससे पहले गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा में अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च कर चुका है। ये सिटी हाउसिंग जेहलम जो है, इसकी ख़ास बात ये कि 50 माइल रेडियस में जेहलम के ऐसी कोई लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी जो है, गोल्ड लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी प्रोवाइड नहीं की गई। इस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द जनरल पब्लिक। प्रोजेक्ट की CEO मरियम हमजा ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मंसूबे की तफसीलात बताईं। आज हमने JW मैरियट ग्रोवेनर हाउस में जेहलम ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया और रिस्पांस was amazing. We sold about 1,000 plots in 2 days and 70% of our project is almost sold, and we've got 2 more events coming up the next weekend in Manchester and Leeds, and we request everyone to join in to avail exclusive discounts and prime locations. मंसूबे के लोकेशन के हवाले से भी इंतजामिया ने मीडिया को आगाह किया। इनका कहना था कि ये अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा है जिसमें तमाम बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के सरमाया को मुकम्मल महफूज बनाया गया है। लीड्स में पुलिस और नौजवानों के दरमियान झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 15 नौजवानों को शरंगेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। शेलिंग और पथराव से हेयर हिल्स रोड कई घंटे बंद रही। इससे पर देखिए आसिफ शहजाद की ये रिपोर्ट।
लीड्स 8 के एरिया हेयर हिल्स में पुलिस और नौजवानों के दरमियान झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। झड़पों का आगाज उस वक्त हुआ जब पुलिस ने नौजवानों के एक ग्रुप को मेन हेयर हिल्स रोड पर आतिशबाजी से मना किया। पुलिस की सख्ती पर नौजवान मुश्तइल हो गए और पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस एहलकारों ने भी शेलिंग की, जिससे इलाका कई घंटे तक मैदान जंग बना रहा। झड़पों की वजह से मरकजी सड़क बंद हो गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने फसाद के इल्जाम में 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मकामी बरतानवी, एशियाई और यूरोपीय शहरी शामिल हैं। आसिफ शहजाद, 92 न्यूज़, लीड्स। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने भारत से फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू को खत्म करने का मुतालिबा किया। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आलमी सतह पर मजम्मत का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर काउंसिल EU की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार की सदारत रुकन यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट शफक मोहम्मद ने की, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर मेहमान ख़ुसूसी थे। 5 अगस्त के बाद इतने बड़े वाक़यात जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। एक तरह से एक कौम को जो है उसकी इनफरादियत ख़त्म करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म करने के लिए जो हिंदुस्तान ने इकदाम उठाए, मोदी साहब ने जो इकदाम उठाए, और इस दौरान जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ जिसको सारी दुनिया जानती है। हज़ार बच्चों को, नौजवानों को गिरफ़्तार करके हिंदुस्तानी जेल में ले जाया गया। बेशुमार लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, और दुनिया को पता ही नहीं है, इसलिए कि एक्सेस ही नहीं है किसी की वहाँ पर। सेमिनार में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और ख़वातीन के मसाइब पर बहस हुई। मकबूजा कश्मीर की सुरैया सदीकी और खौला सदीकी ने मकबूजा खित्ते में ख़वातीन और नौजवान के किरदार पर रोशनी डाली। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद का कहना था कि यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर यूरोपीय यूनियन वीक का मकसद मसला कश्मीर को उजागर करना और दुनिया की तवज्जो कश्मीर में होने वाले मुजालिम की जानिब मबजूल करना है। मुजालिम बंद होने चाहिए और कश्मीरियों को जो उनका बुनियादी हक की आज़ादी है वो मिलना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में है। यूरोपियन यूनियन ने भी हक खुदरादियत की अपने 2008 के रेजोल्यूशन में हमायत की हुई है कि लोगों को उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए। जबकि यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट फुल बैनन तरीसा ग्रिफिन, नौशीना मुबारक, साबिक रुकन सज्जाद करीम, सादिया मीर समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। 93 days today and the world community is sleeping. I think it is unfortunate that the champion of human rights and all these words, they should come forward and help the people of Jammu and Kashmir. कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के ज़ेर-ए-एहतमाम कश्मीर यूरोपीय यूनियन वीक 8 नवंबर तक जारी रहेगा। या वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर राजा अली एजाज ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के मरकजी सेक्रेटरीट में OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ से मुलाकात की, जिसमें बाहमी और दो तलफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले समेत मुख्तलिफ मामलात पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर OIC सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए पाकिस्तान के अवाम इस्लामी ताउन तंजीम के शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर यूसुफ ने कश्मीर के तनाज़े पर OIC के मौक़िफ़ को दोहराया और कहा, कश्मीर के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। यह खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है। स्कॉटलैंड के शहर डंडी के बॉक्सटर पार्क और लोकी पार्क में रंगारंग आतिशबाजी ने आसमान को गुलनार कर दिया। शहरी आतिशबाजी के सालाना मुजाहरे देखकर अश कर उठे। कैसर हबीब की रिपोर्ट। डंडी में हर साल 5 नवंबर की रात लोकल इंतजामिया के ताउन से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाता है। सिटी कौंसिल के इंतजामिया ने इस साल भी ये खूबसूरत रिवायत बरकरार रखी और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। मुजाहरे का एहतमाम मकामी बॉक्सटर पार्क और लोकी पार्क में बैक वक्त किया गया, जिसे देखने के लिए गिरदोनवा से लोगों की कसीर तादाद जमा हुई। आतिशबाजी शुरू होते ही आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से सज गया। मुर्रखीन के मुताबिक आज के दिन बरतानवी शाही सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश बेनकाब हुई और इस साजिश के अहम किरदार गाय फॉक्स को हाउस ऑफ पार्लियामेंट के तहखाने से पकड़ा गया, जिसे बाद में सजाए मौत दे दी गई। अच्छा लग रहा है, आतिशबाजी हो रही है, इतना फन आ रहा है, सो मेनी पीपल है, जगह मिल गई है देखने को। बरतानिया की तारीख में इस वाक़े को गाय फॉक्स डे के नाम से याद किया जाता है। बरतानवी अवाम शाही खानदान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इस दिन को मनाते हैं। ये आतिशबाजी भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरे शहरों की तरफ बरतानिया में डंडी में भी बोन फायर का एहतमाम किया गया। डंडी सिटी काउंसिल की तरफ से
जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की और ये 1605 की हिस्ट्री को दोहराते हुए पार्लियामेंट में जो हमला किया गया था उसका मंसूबा बनाया गया था उसके सिलसिले में इसको मनाया जाता है। यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और आतिशबाजी को महसूस किया। कैसर भी 92 न्यूज़ डंडी। सवात से तुर्क शाही दौर का 1300 साल पुराना मंदिर दरियाफ्त हुआ है। मंदिर पर बेहतरीन नक्शो निगार देखकर इंसान वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाता है। इसी पर देखिए सवात से उबैद फजल की ये रिपोर्ट। वादी सवात कुदरती खूबसूरती के साथ साथ तारीखी लिहाज से भी बहुत अहमियत की हामिल है। सैकड़ों साल कदीम मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा रहने वाली इस वादी में तुर्क शाही दौर का मंदिर दरियाफ्त हो गया। तहसील बरी कोट के इलाका सिकंदर आजम के शहर बाजीरा खूंडी पहाड़ी की चोटी पर तुर्क शाही दौर का 1300 साल कदीम मंदिर फन ताबीर का अजीम शाहकार है। बेहतरीन नक्शो निगारी और उस वक्त की कारीगरी इंसान को हैरान कर देता है। मंदिर को देखने मकामी सियाहों के साथ साथ गैर मुल्की सियाह वादी पहुंच रहे हैं। Everything I had heard about SWAT has been, well, basically what the Western media has talked about. They neglect to talk about the natural beauty that is the Swat Valley, and they neglect to talk about the history that is here. I mean, it is so full of archaeological sites. माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस नया मंदिर का ताल्लुक 700 ईस्वी के तुर्क शाही दौर से है। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में म्यूजियम में मशहूर ज़माना स्टार वॉर्स रोबोट को नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया, जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। कैसर हबीब की ये रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड के पहले डिजाइन म्यूजियम में मशहूर जमाना फिल्म स्टार वॉर रोबोट हेलो रोबोट को नुमाइश के लिए रखा गया। R2D2 मॉडल रोबोट जो कि सियाहों और मुकामी हाजरीन की तवज्जो का मरकज बना रहा, इसको बाकायदा अमेरिका के म्यूजियम से मंगवाया गया है। क्रिस्टी हैजर्ड ने कहा, इस रोबोट की वजह से सियाहों की दिलचस्पी और तादाद में मजीद इजाफा होगा। रोबोट और इंसान की हम आहंगी तरक्की याफ्ता मुआशरे की तरफ बढ़ते कदम है। Henry is an Asquith Palace. He's a vintage bus who takes 8 people, but inside Henry he's like a luxury sitting room. When I used to do tours abroad, I came back to Dundee and realised we didn't have anything like that happening. So instead of getting a people carrier, I wanted something a little bit different. The object behind me is it's called an exoskeleton, and it was created to give mobility to people who are unable to walk. It's basically a robot that's sort of used to repair starships in the movie Star Wars. This particular one's from 1977, the original sort of Star Wars movie, and is sort of buddy C-3PO features with him, and they kind of travel the galaxy. विक्टोरिया और आर्ट म्यूजियम डंडी में इस नुमाइश को हाजरीन ने काफी सराहा। कैसर हबीब 92 न्यूज़ डंडी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।